بات چل رہی تھی پہاڑے والے طلاق کی نا. اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے 2 میں 1 طلاق، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ کہہ کر کے اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ہے یا اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک تو 2 پڑیں گی، لیکن ہمارے نزدیک کتنی؟ 1 ہے نا. کیونکہ طلاق چونکہ طول عرض عموق رکھتا نہیں، قابل آباد ثلاثہ تو ہے نہیں، اور غیر قابل آباد ثلاثہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ضرب کا عمل جو ہوتا ہے اجزاء کی تکثیر میں ہوتا ہے، یعنی اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ نفس مضروب میں اضافہ ہوتا ہے. تو اجزاء کے اضافے سے طلاق میں اضافہ لازم نہیں آتا، جس سے طلاق تو ایک کی ایک ہی رہے گی. اس سے پہلے ماقبل میں ہے نا بتایا جا چکا ہے کہ طلاق کے اجزاء کی کثرت طلاق کے تعدد کو ثابت نہیں کرتی ہے نا. طلاق متعدد نہیں ہوں گی نا، اجزاء کے متعدد ہونے سے، چاہے اس کے کتنے ہی ٹکڑے کر دیے جائیں. بہرحال یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر بتایا تھے فَإِنَّ وَاحِدَةً وَاصِنَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاث. جملہ یہی کہا اس نے واحد ہے نا، انت طالق واحدۃ فی سنتین، لیکن نیت اس نے فی کو ہے نا فی بول کر کے واو کی کر لی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں. خود کردارہ علاج نیست. شیخ سعدی علیہ رحمن نے فرمایا اپنے کیے ہوئے کا علاج نہیں ہے. جب وہ خود ہی بیل مجھے مار، اس نے خود ہی انوائٹ کیا ہے، بلکہ انوائٹ کیا خود ہی جا کر کے بیل کے پاس پہنچ گیا، تجھے آنے کی ہمت ہے کہ نہیں، میں خود ہی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو دین تو پڑھنی ہے بھائی، کہہ رہے انہو یحتمل ہے نا، اس لیے کہ یہ جملہ اس کا یہ ہے نا واو یعنی کہ واحدۃ وسنتین کا احتمال رکھتا ہے نا. لأنه يحتمله فإن حرف الواو لجمعی والظرف یجمع إلى المصروف، اس لیے کہ حرف واو جمع کے لیے ہوتا ہے اور ظرف مصروف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، لیکن یعنی دونوں میں یہ کہہ کر کے احتمال بتا رہے کہ کیسے فی میں آپ نے واو کا احتمال نکالا، جس سے اس کو فی بولنے کے باوجود واو کی نیت کرنا اس کے لیے صحیح ہے، اور جس کے ذریعے 3 طلاقیں واقع ہو گئی. تو کہہ رہے اس لیے کہ فی بول کر کے واو کو مراد لینا یہ کیا ہے، جملہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے. تو احتمال کس طور پر ہوگا، تو کہا کہ واو جو ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، آپ نے تو پڑھا جمع و ترتیب دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو جمع کے لیے بھی ہے نا، ہم تو جمع کے لیے ارے باب وضو میں آپ نے تو پڑھا ہے نا، جمع کی مانا امام شافعی رحمہ اللہ نے ترتیب کے لیے مانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نہیں. بات تو ہے کہ واو پہ نا جمع کے لیے آتا ہے، اور ظرف جو ہوتا ہے وہ مضروب کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ظرف الگ پڑا رہتا ہے مضروب الگ پڑا رہتا ہے. مضروب تبھی تو مضروب ہوگا جب کہ ظرف کے ساتھ ہوگا، الگ سے ہوگا تو مضروب کیسے کہلایا وہ ہے، سمجھ میں آ رہی. تو کسی ظرف کا مضروب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضروب اس ظرف کے پاس ہو، سمجھ میں آئی، کے ساتھ جمع ہو. تو کہہ رہے ولو کانت غیر مدخول بہا یقع واحدہ، تو اگر وہ صاحبہ غیر مدخول بہا ہیں تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے کہ ہے نا قائل کا قول واحدۃ وسنتین سے ہے نا کتنی طلاقیں پڑتی تھی، 3 طلاق پڑتی تھی، ٹھیک ہے نہیں. جی 1 طلاق پڑتی تھی نا،
कितनी तलाक पड़ती थी? अरे गैर मदखूल बिहा को अगर शौहर ने कहा अंतिम तालिक वाहिदतुन व सिनतैन, है ना, तो वाहिदा के बाद वो वाहिदा हो गई ना, खत्म, अलग थलग हो गई, है ना। अब वो तनहा हो गई, अब उनके साथ कोई चीज आ नहीं सकती। तो कह रहे कमा पे कौली वाहिदा वस्तिनतैन, जैसे कि इस सूरत में क्या है, गैर मदखूल बिहा पर एक तलाक पड़ती थी, ऐसे ही जब उसने ये कह करके अंतिम तालिकुन वाहिदतन फिर सिनतैन कह करके वो सिनतैन मुराद ले लिया, तो बात वही है। बात समझे? जिस तरीके से वाव को जाहिर करके, लेकिन अगर वो कहता तो एक तलाक पड़ती, तो ऐसे ही भी बोल करके वाव मुराद लेने की सूरत में भी क्या है, एक ही तलाक पड़ेगी, नहीं। समझ में आई बनी? अब अगर गैर मदखूल बिहा है कि नहीं, और साहब अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, है कि नहीं, बल्कि कुल्हाड़े पे कूद रहे हैं, तो गैर मदखूल बिहा तो खैर वाव पूरा देता, तो है कि नहीं, एक ही पड़ती। लेकिन माँ के माने में ले लिया तो कितनी देर लग पड़ेगी? तीन एक साथ, तीन पड़ जाएंगी कि नहीं। वही कहा कि और अगर उन्होंने मुराद एक दो के साथ एक को ले लिया तो करे तीनों तलाक़ें पड़ जाएंगी। क्यों? इसलिए कि फी जो होता है वो माँ के मानने में आता है, फी को माँ के मानने में लिया जाता है। जैसे कि फरमाने बारी ताला में है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा, यानी मेरे बंदों के साथ। तो फी जो है वो महियत का माना, मुकारनत का माना अपने अंदर रखता है, लिहाजा उसका ये जुमला इस बात का एहतमाल रखता था और मुहतमल शय की नियत की जा सकती है, लिहाजा उसने मुहतमल चीज की नियत की, उसकी नियत मसमू होगी, माकूल भी है कि नहीं, क्योंकि कायदे के मुआफिक है तो माकूल भी है, और इंदल कादी उसकी बात मसमू भी है। समझ में आई? सुनी भी जाएगी। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है ना गैर मदखूल बिहा को जब तलाक देंगे तो बाइना हो जाएगी, तब उससे निकाह करना चाहता है दोबारा हो तो सिर्फ निकाह करना पड़ेगा। हाँ बाइना होगी तो निकाह ही करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर जो है ना वाहिदों व सिनतैन, अगर उसको एक साथ तीन तलाक पड़ जाए तब खत्म है ना, तब वो भी मुगल्लज़ा हो गई। हाँ, तब दोबारा निकाह से करना चाहता है तो वो हलाला करेंगे। अब हलाला खत्म है वहां पर भी, है कि नहीं। अब वो बोले कह रहे भाई इसमें तो एक में बाइना हो जाती तो दो में, हाँ नहीं, यहाँ पर एक साथ वो मुगल्लज़ा हो गई, एक बाइना। समझ में आ रही? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे वलो नव ज़र्फ़ा यफ़ऊ वाहिदा, और ज़र्फ़ की नियत करने पर एक तलाक पड़ेगी, लेकिन यानी जुमला यही कहा था अंति तालिकुन वाहिदतुन फी सिनतैन, और ये कह करके उसने ज़र्फ़ की नियत की थी, यानी सिनतैन को क्या कर दिया था उसने, ज़र्फ़ बना दिया और वाहिदा को मज़रूफ़ बना दिया, नहीं। जैसे लोटे में दूध है ना, तो तो लोटा क्या हुआ, ज़र्फ़ हुआ ना, और दूध क्या हुआ, मज़रूफ़ हुआ। तो उसने कहा दो में एक, तो गोया कि उसने सिनतैन को क्या किया, ज़र्फ़ की नियत कर ली, तो सिनतैन को ज़र्फ़ बना दिया और वाहिदा को मज़रूफ़ बना दिया। तो क्या ज़र्फ़ की नियत करने पर एक तलाक पड़ेगी, इसलिए कि तलाक में तो ये सलाहियत नहीं कि वो ज़र्फ़ बने। समझ में आई?
तलाक ज़र्फ़ तो बन नहीं सकता, है कि नहीं? बोले यार सकता बोल सकती है ना, तो भाई तलाक المصدر لا يذكر ولا يؤنث है ना, لأن तलाक ला यस्लहु ज़र्फ़ा, इसलिए कि तलाक है ना को ज़र्फ़ नहीं बना सकते, फ़यलहु ज़िक्रुस्सानी, तो ये दूसरे का जिक्र उसका क्या होगा, लफ्ज़ हो जाए, कहना उसका बेकार गया, तो जब बेकार गया तो अंत तालिक वाहिदा तन्हा बाकी रहा, और अंत तालिक वाहिदा कहने से एक तलाक पड़ती, लिहाजा एक तलाक पड़ जाएगी। समझ में जी। वलो काल इस्नतैनी फिस्नतैनी व नवज़रबा वल हिसाब फयस्नतान, और अगर उसने कहा दो दुनी ना तुझे तलाक, हमें दो में दो, है कि नहीं, यानी दो तलाक़ें, जैसे मिसाल के तौर पे ना दो तलाक़ें ही हैं वो दो बर्तन में रखते, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कि एक है ना, एक गिलास का पानी दो गिलास में रखते, तो क्या वो दो गिलास पानी हो जाएगा, वो रहेगा एक ही गिलास का पानी, अज्जा की तकसीर हो रही है ना, तो ऐसे ही दो गिलास का पानी दो गिलास में रखे, पहले एक गिलास में था, बड़ा गिलास था, तो दो गिलास में रखा तो क्या हो गया, वो दो गिलास पानी हो गया, इसके हिसाब से वो नहीं ना, उस हिसाब से तो वो एक ही गिलास का पानी है ना, जिसमें था वो पहले से, समझ में आई? इसके तो अज्जा की तकसीर हुई कि दो गिलास में और डिवाइड हो गया, समझ में आई? तो का वलो काल इस्नतैन फिस्नतैन, और अगर वो कह रहा है कि दो में दो, और उसने ज़र्ब हिसाब की नियत की है, पर ये सिनता तो दो तलाक़ें पढ़नी है ना, और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तीन पढ़ेंगी, क्योंकि हिसाब का हिस्सा है ना, हिसाब का हिसाब रखा जाए, हिसाब का हिसाब रखा जाए, नहीं हिसाब का तकाजा तो ये था, ज़र्ब का तकाजा तो ये था कि चार तलाक़ें हों, दो दुनिया कितनी होती है, चार, है ना, लेकिन तेरे करे तो क्या करे, लाकिन ला मज़ीद अली तलाक़ इला सलास, तलाक़ की तीन पर ज़्यादती हो नहीं सकती, लिहाजा खाई ना खाई तीन को लॉक कर दिया जाए, लेकिन वहीं पर खत्म ना मामला, उससे आगे तो बढ़ नहीं सकती ना, तो कह रहे लेकिन ला मज़ीद अली तलाक़ इला सलास, लेकिन ये क्या, ये तलाक की ज़्यादती तीन से हो नहीं सकती, लिहाजा क्या है तीन तलाक पे बस कर दिया जाए, उससे आगे नहीं, समझ में? वइंदना एतिबार लिलमज़कूर अव्वल अला मा बय्यनाहु, और हमारे नजदीक अव्वल में जिक्र करदा ही का है, यानी अव्वलन जिसका जिक्र किया गया उसी का एतिबार है, अला मा बय्यनाहु बुनियाद उसी पर है जिसको हमने बयान किया, समझ में? जी। अच्छा, ये तो ज़र्ब वाली तलाक गई है ना, तलाक हमारे नजदीक दो तलाक वाक़ होगी। हाँ, किसके नजदीक? हाँ, हमारे नजदीक तो दो होंगी ना। हाँ। अच्छा, हाँ इधर सराहत नहीं की ना, अरे इधर मतलब शरा में सराहत नहीं की ना, लेकिन उसमें मतन सराहत कर देना भैया सिनतान जी। और अगर स्नतन की स्नतन कह रहा है तो ज़र्फ और हिसाब की नियत करने से हमारे नजदीक दो ही तलाक पड़ेंगी, क्योंकि अब अज्जा की तकसीर होगी, दो के अज्जा की तकसीर है ना, और अज्जा की तकसीर क्या होता है, मादूद में तकसीर नहीं होती है, समझ में आई? मादूद में तकसीर होगी नहीं ना, मादूद तो जो का दो रहेगा ना, दो थे तो दो ही रहेंगे, हो जाएंगे कि नहीं? बोले हजरत के हाथ में बड़ी, हाँ हजरत के हाथ में बहुत बड़ी, मतलब बहुत करामत तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा करिश्मा है कि नहीं, हजरत एक को दो कर देते हैं। बोले अच्छा दीजिए हमारी बंडी, एक को दो कर दीजिए, तो फाड़ के दो कर देंगे तो लाभ पड़ेगा ना उनको, है ना, समझ में? हाँ, तो बंडी दो होनी चाहिए, तो बंडी दो होने का मतलब ये कि उसके मादूद में है ना वो इजाफा होना चाहिए, यहाँ वो अज्जा में इजाफा कर रहा है, तो
जब इजाफा करने से शय तो क्या है, वो बढ़ नहीं जाएगी ना, शय तो वही रहेगी ना, बात समझ में आ रही है। बल्कि शय में तो नुकसान लाती मार रहा है, शय में कमी लाती मार रही है। बाहर यार समझ है ना, समझ रही है ना बहनी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ क़ाल अंति तालिक़ुन मिन हाहुना इला शामी फहिय वाहिदा यमलिकु रजआ, कह रहे कि और अगर उसने कहा कि तुझे यहाँ से लेके मुल्क शाम तक तल्ला, अल्लाह, लेकिन ऐसी तलाक नहीं दे रहा है, बल्कि कहाँ तक की तलाक दे रहा है, मुल्क शाम तक की तलाक। तो कह रहे हैं कि तुझसे एक तलाक वाक़या होगी, यानी एक तलाक से वो तलाक होगी, और वो तलाक कैसी रहेगी, तलाक रजई रहेगी, तलाक बाइन नहीं रहेगी। क्योंकि तलाक बाइन में क्या होता है, शिद्दत वाली तलाक होती है। तो बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार इतनी लंबी चौड़ी तलाक दे रहा है, तो शिद्दत क्यों नहीं पैदा होगी, समझ में आई? इसमें तो शिद्दत है ना, नजर आ रही है कि उसने कहा कि तुझे यहाँ से लेके मुल्क शाम तक तलाक, तो गोया कि वो इस तलाक में शिद्दत पैदा करना चाहता है, और शिद्दत तभी होगी जबकि उस तलाक में रजात का इख्तियार उसका सल्ब कर लिया जाए, छीन लिया जाए, खत्म, अब रजात नहीं कर सकता। और ये किस में होगा, तलाक बाइन में होगा, ये तलाक मुगल्लज़ा में। और बाइन से जब का मामला चल जाता है ना, बन जाता है, तो उसको मुगल्लज़ा में ले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मिनिमम, लेकिन कम से कम उसको बाइन तो कर दीजिए। मतलब अकली तकाजा ये है कि नहीं, क़ियासी तकाजा ये है, जिसके पेश नज़र इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये तलाक़ बाइनी, लेकिन बाइना हो जाएगी। कह रहे लिअन्नहु वसफ़त तलाक़ बित्तूल, इसलिए कि उसने तलाक़ को क्या किया है, लंबा बना दिया है, लंबाई को है ना, लंबाई वाली यहाँ से लेकर के क्या कर दिया उसने, तो इसमें लंबाई पाएगी कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं लंबाई तो ही ना इसमें, बल वसफ़हु बिल क़स्री, उसने तो उसको छोटा कोता तंग कर दिया है तलाक को, उसके वसी दामन को क्या कर दिया उसने, तंग बना दिया है। बड़ा वसी मैदान है तलाक का। तलाक मैंने कहा है ना कि तलाक क्या है, कहीं पर भी किसी भी कोने में दुनिया के किसी भी गोशे में पड़ सकती है, और उसने तलाक को क्या किया है, यहाँ से लेकर मुल्क शाम तक महदूद कर दिया उसने, अनलिमिटेड को लिमिटेड कर दिया उसने, गैर महदूद को महदूद बना दिया। तो ये तो उसमें कस्र लाजिम है, तूल कहाँ लाजिम है, समझ नहीं? तो हम कहेंगे ला बल वसफ़हु बिल क़स्री, नहीं बल्कि उसने तलाक को तो क्या कर दिया है, कोता बना दिया है, छोटा तंग कर दिया है, लिअन्नहु मतावक़ा व क़ाबिल अमाकनी कुल्लिहा, इसलिए कि तलाक का मामला तो ये है कि जब पड़ती है तो सब जगहों में पड़ती है, सिर्फ यहाँ से लेकर मुल्क शाम ही तक महदूद नहीं होती है। तो तमाम जगहों में पड़ने वाली चीज को उसने यहाँ से मुल्क शाम तक महदूद कर दिया। वलौ क़ाल अंति तालिक़ुन बिमक्का व फ़ी मक्का फ़हिय तालिक़ुन फ़िल हाल फ़ी कुल्लि बिलाद व कज़ालिक लौ क़ाल अंति तालिक़ुन फ़ी दार लिअन्न तलाक़ ला यतख़स्ससु बिमकान दून मकान। अच्छा पहले हाथ में ले पहले, वलौ क़ाल अंति तालिक़ुन बिमक्का व फ़ी मक्का, और अगर उसने कहा तुझे मक्का में तलाक है ना, बिमक्का कह करके या बिमक्का कह करके, उसकी तलाक को क्या है, मक्का में महदूद किया, तो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो मक्का जाएगी तब मुतल्लका होगी, फौरी तौर पर हर शहर में, जिस भी शहर में वो अभी है वहां पर वो मुतल्लका हो जाएगी, समझ नहीं? भैया उसने कहा कि अगर तुम मक्का जाएगी तो तब मक्का में जाएगी है ना, तो अगर के बाद है ना, तो इन है तो शर्त की जज़ा का वक़ू नहीं है ना बहनी, तो शर्त कहे यहाँ ने शर्त नहीं लगाई, वो तो
وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی طلاق کو کیا ہے مکہ میں لے جا کر کے ہے نا ڈال دے رہا ہے. مکہ میں تھوڑی نہ ہوتی طلاق. طلاق تو ہر جگہ پڑے گی نا. تو جہاں پر بھی جس بھی شہر میں وہ ہوگی فوری طور پر کیا ہوگی وہ مطلقہ ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں تعلق فی الحال فی کل البلاد. تو وہ کیا ہے ہر شہر میں فوری طور پر کیا ہو جائے گی مطلقہ ہو جائے گی. سمجھ مولا نے طلاق کے بائن کیوں قرار دیا؟ کس نے؟ اللہ کا کہنا ہے کہ یہاں سے ملک شام تک کہہ رہا ہے تو ظاہر اس کے اندر طولانیت پتہ چل رہی کہ نہیں؟ ہاں لیکن ہاں ایک اور بات اگر شوہر اس کی جگہ پر یہاں سے کہ لے کر ملک شام تک ہے نا جیسی لمبی طلاق اگر لمبائی کا ذکر اگر اس نے کر دیا تو ہمارے نزدیک بھی اب بائن پڑے گی. سمجھ میں آئی؟ گویا کہ اب جب لمبائی کا ذکر کر دیا تو اب اس نے بالکل ظاہر کر دیا کہ یہ جملہ کہہ کر کے وہ شدت پیدا کرنا چاہتا ہے. گو کی شدت نہیں تھی ہے نا ہم اس میں کیا ہے تخفیف کر سکتے تھے اس کے لیے لیکن ابھی میں نے بتایا نا آپ المجمات تو وہ ایسا جملہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس سے کیا ہے وہ اپنے معافی ضمیر کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کیا ہے شدت پیدا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے کہا نا کہ یہاں سے لے کے ملک شام جیسی لمبی طلاق تو گویا کیا کرنا چاہتا ہے وہ شدت کرنا چاہتا ہے. اور طلاق میں شدت والی طلاق کون سی ہوگی؟ بائن ہوگی. لہٰذا طلاق بائن. سمجھ میں حضرت ظرف والا بتائیے نا والا ظرف یعنی اگر اس نے ظرف کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی اس لیے طلاق جو ظرف کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. ہاں جو اچھا یہ اس نتائج کس نتائج والے میں کون سے والے میں جی اچھا وہ ضرب کی اگر کیا ہے ایک ہی طلاق ایک ہی طلاق یہ تو ہے اس لیے کہ طلاق جو ہے وہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ٹھیک ہے نہیں ہے طلاق کے اندر ظرف بننے کی صلاحیت ہے وہاں ظرف سے کیا مانا ظرف کے تو کسی چیز کو ظرف بنا سکتے ہیں تو کون سی چیز ظرف بنتی ہے؟ محسوسات سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا. معنویات غیر محسوس چیز کسی کے لیے ظرف کیسے بنے گی؟ جو نہ تو خود رافت اوروں کے ہاتھی ہو گئے جس کا خود کا عطا پتہ نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے پتہ کیسے بن سکتا ہے؟ دوسروں کا پتہ کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ گئی؟ ظرف جو ہوتا ہے وہ مضروب کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں کہ مضروب ظرف کے اندر ہو کر پایا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو معنوی چیز ہے نا اور معنوی چیز کو محسوس کر کے ہم دکھا سکتے ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں نہیں نا. وہ ظرف بننے کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں بنی. طلاق جو ہے وہ ظرف نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں بولے سکتا ہے نا. لفظ پر غور کیجیے معنی پہ نہیں ہے نا. لأن طلاق لا يصلح ظرفا طلاق جو ہے وہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فیلق ذکر ثانی تو اس کا ذکر ثانی لغو ہو جائے گا. سمجھ میں انت تعلق واحدہ فی سنتین اس نے کہا نا تو سنتین والا جو لفظ ہے وہ لغو ہو جائے گا کیونکہ سنتین کو کیا بنا رہا ہے وہ ظرف بنا رہا ہے تو ظرف تو طلاق بن نہیں سکتی. تو سنتین کہنا اس کا کیا ہو جائے گا لغو ہو جائے گا اور انت تعلق واحدہ تنہا باقی رہے گا. تو انت تعلق واحدہ سے ایک طلاق پڑتی پڑ جائے گی ختم ہے نا بنی. لفظ طلاق ظرف بنے گا کیا ہوا لفظ طلاق ظرف بنے گا ظرف تھوڑی نہ بن رہا ہے. سنتین جو ہے اس کو ظرف بنانا چاہ رہا تھا نا اپنے جملے سے. نہیں اسے آپ بولے نا معنی نہیں بنے گا لیکن
लफ्ज कैसे वैसे तलाक जो ज़र्फ बनेगा। अरे मेरी आपा, मैंने वो तलाक पड़ेगा पड़ेगी वाले पे बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ यानी कि तस्कीर और तानीस पर गुफ्तगू करो, बीच में कुछ बोल देता हूँ मैं इसे, है ना बनी। वो जुमले मुतरज़ा होता है ना, है ना। आप पढ़ी होंगी ना जुमले मुतरज़ा, उसका ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन इजाफे के लिए उसको ऐड किया जाता है, लाया जाता है, लेकिन हाँ, तो इस जुमले मुतरज़ा में समझने की बात होती है ना सर, तो इसलिए अरे बनी ऐसी कोई बात नहीं, जुमले मुतरज़ा बोलते हैं ना बनी, ऐसी कोई बात नहीं, है ना। जी हज़रत। पूछ लेने का, हाँ ऐसा सही है, समझ में आई। हाँ। कुछ बातें मैं बोलता हूँ बनी, है ना, बज़ाहिर आपको कुछ और समझ में आती होंगी, लेकिन आप उसको गौर से, जो बातें हैं उनको गौर से सोचिए समझिए, तो उसका माना कुछ और होता है ना बनी। ऐसा लगता है कभी कभी कि इसका माना कुछ और समझ लूंगी, लेकिन ये इसको मैं, है ना, एक्सप्लेन करूं या उसकी तफसील करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं इस मामले में उसको बयान करके आगे चल जाता हूँ, क्योंकि उसकी तफसील में अगर फंसूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी, समझ में आई। चलिए देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो क़ाल अंत तालिकुन फी मक्का फी मक्का फहिय तालिकुन हुम। चलिए कल कर लेते हैं इसको ना बनी। जी हज़रत, यहाँ पर शुरू में जो है बाबु इक़ाई तलाक में शुरू के सफ़े में बनी का माना